So hello friends, today we are going to talk about the circulatory system of cockroach. So let us begin with the topic. Now when you talk about the circulatory system, you just need to remember that कि जो कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, एक टाइप का इंसेक्ट है जिसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है. Remember this, okay? So the first thing that you need to remember over here is the circulatory system is what kind of? Open. Okay? इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है. ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? दैट ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट. अगर है तो पुअरली डेवलप्ड है और अगर नहीं है तो they are totally absent. Okay, so either they are poorly developed or they are absent. ठीक है, तो they have a poorly developed or absent blood vessels. blood vessels का मतलब होता है arteries, veins and blood capillaries. ठीक है, तो ऐसा होता है. Further, heart होते हैं इनके पास और heart की total units होती है 30. ठीक है, कितनी होती है इनके हर्ट्स? 30 यूनिट्स का हर्ट बना हुआ होता है. सो लेट अस सी द डायग्राम. लेट्स से दैट दिस इज अ कॉकरोच. ठीक है, ये कॉकरोच है. कॉकरोच का बॉडी है, हम ऐसा कह सकते हैं. तो 3 हर्ट्स आर लोकेटेड इन द थोरेक्स. ओके, 3 हर्ट्स आर लोकेटेड इन द थोरेक्स. So these 3 hearts are known as thoracic heart. Okay, how many heart? 3 hearts. Where are they located? They are located in the thorax region of cockroach. Further हम बात करें बाकी के जो 10 heart है, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so the rest 10 heart are located in the abdomen. So these all are abdominal hearts. So total 10 abdominal heart और 3 क्या है? 3 है thoracic heart. तो total heart कितने हुए इसके पास? इसके पास heart कितने हुए? 13 units के हुए. अब heart का अगर हम डायग्राम देखें, so the heart is this way. Okay, मतलब we have got this kind of heart. Basically हमारा heart cone shape का है. इसका भी है लेकिन exactly opposite. ठीक है. So इसका जो anterior end है, okay, this is the anterior end and anterior end is pointed, या तो फिर हम कह सकते हैं narrow, whereas the posterior end is broad. ठीक है. सो इसका इंटीरियर एंड कैसा है? नैरो है या पॉइंटेड है और पोस्टीरियर एंड कैसा है? ब्रॉड है. और इसके पास यहाँ पे हर एक एंड पे, मतलब ऑल दिस हर्ट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय अ वाल्व कॉल्ड ऑस्टिया. ठीक है, तो ऑस्टिया क्या है? वाल्व है इसका. ठीक है, सो ऑल द हर्ट ओवर हियर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर by a valve called ostia. Remember that. Okay, so they have got a valve, that is what you call it as ostia. Okay, now how is the blood flow? Okay, how the blood flow is taking place? The blood flow is taking place. Now we know that our heart is located over here on the left side, right? So it goes from anterior to posterior end, right? But इसका कैसा है? The blood flow is from posterior to the anterior end. मतलब the blood flows from here and then it goes over here. अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? तो वो उसकी बॉडी कैविटी में चला जाता है. ओके, सो बिकॉज इसके पास ऐसा कोई ब्लड वेसल्स नहीं है जैसे हमारे हार्ट में से ब्लड निकल के कहाँ जाता है, तो वी नो दैट इट गोज इन आर्टरीज एंड वेन्स, राइट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो सीधा जाके बॉडी की कैविटी में गिरता है. ओके, सो वेयर हाउ इज द ब्लड फ्लो? So you need to remember that the blood flow is, you can say, from heart, जैसे posterior side से शुरू हुआ, ठीक है. सो पोस्टीरियर साइड से शुरू होके इट गोज टू द हार्ट,
फिर ऑस्टिया से फिर वापस बहुत सारे हर्ट को क्रॉस करके ये कहां जाएगा? इट विल गो टू द बॉडी कैविटी. ओके, सो बॉडी कैविटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज hemocoel. It can also be called as hemocoel. Hemo मतलब blood, cell मतलब सीलम. सीलम का मतलब होता है बॉडी की कैविटी. ठीक है, तो it goes into the body cavity. This body cavity is also known as sinus. Okay, sinus. Sinus भी कह सकते हैं, sinus से कहते हैं. तो that is what you can say, there is a cavity inside that, and there we can say that उसके अंदर blood चला जाता है. ठीक है, तो इसका it goes this way from posterior to anterior, और anterior से होके फिर वापस कहाँ जाएगा? It will go to the body cavity. So body cavity को हम यहाँ पे hemocoel भी कहते हैं. ओके, और या तो फिर blood cavity भी कह सकते हैं, या तो फिर sinuses भी कह सकते हैं. Further, you can say that the heart is connected with certain muscles. Okay, these are the muscles to which the heart is connected. You can say like this. Okay, इस तरीके से heart, हर एक heart muscles से connected होता है till the top. Over here also there will be muscles. You can say this way. I'll just put this. These are all the muscles. Okay, so these muscles are called as alary muscles. Okay, इसे हम कहते हैं alary muscles. And what are these muscles responsible for? These muscles, alary muscles, heart के दोनों side पे होते हैं. They are known as they are located on the lateral side of the heart, and the function of these alary muscles is, you can say that it goes for the contraction of the heart. Okay, so मैं यहीं पे function लिख देती हूँ. It is responsible for the contraction of heart. Okay, तो I repeat the topic once again. कितनी units है heart की? 13 units है. 3 thoracic region में है, बाकी की 10 is present in the abdominal region. So overall 13 units of heart. There is no presence of blood vessels. हर्ट के बीच में वाल्व्स होते हैं, एंड दीज वाल्व्स आर कॉल्ड ऑस्टिया. ओके, एंड द ब्लड फ्लो इज फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर साइड. फर्दरमोर, अगर हर्ट का शेप पूछा जाए तो एंटीरियर एंड इज पॉइंटेड. यू कैन से एंटीरियर एंड इज नैरो एंड द पोस्टीरियर एंड इज ब्रॉड. सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, तो और ब्लड कहाँ फ्लो होता है? ब्लड हर्ट से, ऑस्टिया से 13 यूनिट्स ऑफ हर्ट को क्रॉस करके वापस जाएगा हीमोसेल. हीमोसेल्स मतलब होता है बॉडी कैविटी. ओके, अब यहाँ पे हम अगर ब्लड को डिस्क्राइब करें, ओके, सो ब्लड हियर इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ, और इसमें नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता. रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हीमोग्लोबिन, वी हैव गॉट हीमोग्लोबिन, अर्थवर्म हैज गॉट हीमोग्लोबिन, बट कॉकरोच डज नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. देयर इज नो हीमोग्लोबिन प्रेजेंस, एंड हेंस द हीमोलिम्फ इज कलरलेस. ओके, कैसा होता है? कलरलेस होता है. फर्दर, इसके अंदर सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है. ठीक है, plasma is that dissolved substance and cells are phagocytic in nature. Okay, plasma तो fluid है और cells क्या होते हैं? Phagocytic in nature. So this is all about the circulatory system of cockroach. You just need to remember that it is open with 13 units of heart, anterior and narrow, posterior and broad. फर्दर हम कहेंगे कि दोनों के बीच में एक वाल्व जैसा होता है, दैट इज नोन एज ऑस्टिया. द मसल सराउंडिंग दैट इज नोन एज एलरी मसल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो इतनी जो ये टॉपिक है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. अब नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच. सो लेट अस बिगिन विद दिस नेक्स्ट टॉपिक, एंड हियर वी गो विद द
respiratory system. Okay, now respiratory system is composed of mainly three things, that is spiracles, trachea and tracheoles. ठीक है, और ये हाईली ब्रांच्ड होती है, तो इसे हम ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर सिस्टम. फर्दर अगर हम देखें तो लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो इट इज कंपोज्ड ऑफ और इट कंटेन्स, ऐसा आप लिख सकते हो, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली थ्री थिंग्स. ठीक है, इट इज इन्वॉल्विंग मेनली थ्री थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज spiracles. Spiracle leads to trachea. Trachea leads to tracheal tubes, and tracheal tubes leads to tracheoles. Okay, this is a tracheoles. So now let us understand how does it look. Okay, let's say this is a abdomen of cockroach. Okay, and this is the head portion. तो spiracles कैसे होते हैं? There are totally 10 pairs of spiracles. कितने होते हैं totally? Spiracles 10 पैर होती है. ठीक है, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Similarly over here also. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. I'll just take it a bit down. 8 9 and 10. So spiracles क्या है? Spiracles aperture होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो कॉकरोच की बाहर की वॉल पे. ओके, कुछ होते हैं जो ये जो पहले दो है, these are located in the thorax. Okay, so these two are located in the thorax. 2 pairs. Okay, total 20 होते हैं. पेयर में पूछा जाए तो you need to write 10 pairs are present. और अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि टोटल 20 होते हैं. Okay, so 2 spiracles are located in the thorax and rest 8 pairs are located in the abdomen. ठीक है, तो total there are 10 pairs of spiracles. So I'll write over here a point that total 10 pairs of spiracles are present. Now from the spiracles अंदर की तरफ ट्रैक किया जाता है ऐसे, from all the things this way, which get further branch this way. ओके, इस तरीके से अंदर ट्रैक किया जाता है और वो अंदर की तरफ ज्यादा ब्रांच हो जाता है इस तरीके से, दिस वे. सो दिस इज टोटली अ ब्रांच ट्यूब्यूलर सिस्टम. दिस वे यू कैन से this kind of structure is present, right? So I'll just draw a enlarged view of this structure over here. ठीक है, तो let's say this is a spiracle. Okay, so I'll point out over here that this is a spiracle. Now from the spiracle there enters a tube, and this is what you call it as trachea. This tube gets further branched this way, and this is known as tracheal tubes. These are known as tracheal tubes. It gets further branched into smaller diameter structure, and this is called as tracheoles. So this is called as tracheoles. Okay, so
So this kind of respiratory system is seen, and you can see that it appears like a branch tree. So we call it as it is a branch tubular system. ठीक है? Further बात करें तो over here the spiracles will have hair-like structures, and these hair-like structures are known as bristles. Okay? So spiracles will have this way hair-like structures, this way, and these hair-like structures are known as bristles. Okay, and so the spelling is B-R-I-S-T-L-E-S. Okay, it is known as bristles. अब ये स्पाइरिकल क्या है? हम कह सकते हैं जैसे हमारी नोज होती है वैसे कॉकरोच को स्पाइरिकल होते हैं. जैसे हमारे नोज में हेयर्स होते हैं, यू नो दैट इट फिल्टर्स द एयर, इट फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स आउट, राइट? तो वैसे ही स्पाइरिकल्स के अंदर कॉकरोच के पास क्या होते हैं? ब्रिसल्स होते हैं, और ये ब्रिसल्स बने होते हैं काइटिन के, एंड यू कैन से दैट इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. सो यू कैन से दैट ब्रिसल्स एक्ट्स लाइक अ फिल्टर. ओके, और स्पाइरिकल्स क्या है? स्पाइरिकल्स इज अ एपर्चर. ओके, फर्दर अगर हम बात करें तो इससे अंदर की तरफ एक स्पिंचटर मसल होता है जो स्पाइरिकल को ओपन और क्लोज करता है. ओके, तो स्पाइरिकल ऑल्सो बेयर्स अ स्पिंचटर दैट ओपन्स एंड क्लोजेस. मतलब what? The sphincter that surrounds the spiracle regulates the opening and closing of, you can say that, ये जो sphincter होता है that regulates the opening and closing of this spiracles, right? So bristles जो होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं. Now इसकी जो पूरी ये structures है ये सब पूरा काइटिन का बना हुआ होता है. Okay, so it is all made up of chitinous ring. Remember that. Okay, so what is this? These are made up of chitinous rings. So how does the air goes inside? अब ये स्पाइरिकल से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, it goes to trachea. Okay, सबसे पहले स्पाइरिकल, फिर trachea से it will go to tracheal tubes, और ट्रैकियल ट्यूब से ये जाएगा कहाँ? इट विल गो इनटू द ट्रैक्यूल्स. और एग्जैक्टली डिफ्यूजन कहाँ होता है? जैसे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है? तो एग्जैक्टली यहाँ पे डिफ्यूजन कहाँ होगा? इट टेक्स प्लेस एट द पॉइंट व्हाट यू कॉल इट एज ट्रैक्यूल्स. सो ओवर हियर आई पॉइंट दैट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ओवर हियर. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट यू कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है? इसमें आपको नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स याद रखने हैं, कहाँ से गैस कहाँ जाता है. अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो इस तरह का फ्लो होगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है तो वो बाहर निकलेगा. ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द ब्रांच्ड रेस्पिरेटरी